Hello children, today's subject English, Unit 2, Lesson 2.4 Story Time, Unity is Strength. पहले की हमने लेसन रीड किया है अच्छे से. Now we solve the worksheet. First person is hard words. Hard words read and write 2 times in the notebook. First person is there. First word is there, VILLAGE, village. क्या वर्ड्स है? विलेज. VILLAGE, विलेज. नीचे है FIGHTING, फाइटिंग. FIGHTING, फाइटिंग. नेक्स्ट BREAK, break. BREAK, break. Next is FATHER, father. FATHER, father. Next is friendship. FRIENDSHIP, friendship. FRIENDSHIP, friendship. Next is there IMPOSSIBLE, impossible. IMPOSSIBLE, impossible. Next is worried. WORRRIED, worried. WORRRIED, worried. Next is sticks. STICKS, sticks. STICKS, sticks. TRIDE, tried. TRIED, tried. Next SINGLE, single. SINGLE, single. Next UNBROKEN, broken. Unbroken. UNBROKEN, unbroken. Next is surprise. SURPRISED, surprised. SURPRISED, surprised. Okay. Next is there quarreling. QUARRELLING, quarreling. QUARRELLING, quarreling. Next is bundle. BUNDLE, bundle. BUNDLE, bundle. Next is brother. BROTHER, brother. BROTHER, brother. Next is EASILY, easily. EASILY, easily. Next is enemy. ENEMY, enemy. ENEMY, enemy. Okay. So read again. VILLAGE, village. Okay. FIGHTING, fighting. BREAK, break. FATHER, father. FRIENDSHIP, friendship. IMPOSSIBLE, impossible. WORRRIED, worried. STICKS, sticks. TRIED, tried. SINGLE, single. UNBROKEN, broken. Unbroken.
surprised, surprised. QUARRELLING, quirling. BUNDLE, bundle. BROTHER, brother. EASILY, easily. ENEMY, enemy. ओके, समझ में आया आपको? इसको 2-3 टाइम 4 टाइम रीड करो और राइट करो नोटबुक में, गुड हैंड राइटिंग में. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलर वर्ड हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से हमें स्मॉल वर्ड फाइंड करना है, स्मॉल वर्ड लिखना है. फर्स्ट वर्ड इज एवरीथिंग. EVARTHING, everything. Second, FRIENDSHIP, friendship. Third, SEPARATED, separate. Next, TOGETHER, together. Okay, so we write small word. इनमें से ही हमें छोटे वर्ड ढूंढने हैं और राइट करने हैं. बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 4 वर्ड फाइंड किया है. ओके, सो आंसर इज एवरीथिंग वर्ड. इसमें से हम लोग वर्ड लिखेंगे EVERYTHING, एवरीथिंग. तो फर्स्ट वर्ड लिखेंगे EVERY, एवरी. THIN, थिन. VERY, वेरी. THING, थिंग. समझ में आया? यही एक वर्ड है एवरीथिंग. उसमें से हम लोग छोटा छोटा लेटर अल्फ़ाबेट को कंबाइन करके नया वर्ड तैयार किया है. EVERY, एवरी. THIN, थिन. EVERY, एवरी, वेरी. THING, थिंग. ओके, 4 हो गए ना. नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप के में से ढूंढेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे FRIEND, फ्रेंड. फर्स्ट वर्ड क्या है? फ्रेंड. सेकेंड SHIP, शिप. SEND, सेंड. आगे FIND, फाइंड. 4 वर्ड हमने इसमें से फाइंड आउट किए हैं. नेक्स्ट इज सेपरेटेड. वर्ड है सेपरेटेड. तो फर्स्ट वर्ड लिखेंगे SEPARAT, सेपरेट. SEPARTE, सेपरेट. RATE, रेट. SPARE, स्पेयर. SEAT, सीट. ओके, सेपरेट, रेट, स्पेयर, सीट. नेक्स्ट वर्ड इज टुगेदर. टुगेदर में से फाइंड करेंगे हम लोग GREET, ग्रीट. THERE, देयर. TEETH, टीच. OTHER, अदर. इसमें से आप और भी स्मॉल वर्ड भी बना सकते हो. ओके, सो फिर से रिपीट करेंगे हम लोग. एवरीथिंग का क्या वर्ड्स था? एवरी, थिन, वेरी, थिंग. ओके, फ्रेंडशिप में से फ्रेंड, शिप, सेंड, फाइंड. नेक्स्ट सेपरेट, रेट, स्पेयर, सीट. नेक्स्ट टुगेदर का ग्रीट, देयर, टीथ, अदर. ओके, सो नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमें आंसर लिखना है. ये स्टोरी में से ही आंसर हैं. ओके, वाई वॉज द ओल्ड मैन वॉरिड. वाई वॉज द ओल्ड मैन वॉरिड मीन्स जो ओल्ड मैन था वो क्यों परेशान था. स्टोरी सीखा था ना आपने. अभी मालूम है आपको आंसर इसका? किस किस को मालूम है? टेल मी फास्ट. ओके, now I explain. Answer is the old man was worried because his sons
were always quarreling with each other. They would never agree on any point. They would not listen to him and would fight for everything. I repeat the answer. The old man was worried because क्यों था? His four sons was always quarreling. उसके जो बेटे थे आपस में झगड़ा करते रहते थे. Quarreling with each other. They would never agree on एनी पॉइंट. वो कभी भी एक पॉइंट पे नहीं टिकते थे, एक बात पे नहीं टिकते थे. दे वुड नॉट लिसन टू हिम एंड वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. हमेशा वो किसी भी बात को पकड़ के झगड़ा करते थे और उनकी वो नहीं सुनते थे. समझ में आया? ये आंसर आपको बाहर करना है. नेक्स्ट इज second person. What happened when the sons tried to break the bundle of sticks? What happened when the sons tried to break the bundle of sticks? Answer is मीन्स क्वेश्चन क्या था? जब उनसे बंडल, उनके बच्चों से, बेटों से बंडल नहीं टूटा. what happened when the son tried to break the bundle of sticks? क्या उनसे वो टूटा था बंडल? नो, द बंडल ऑफ स्टिक्स वुड नॉट ब्रेक. जो बंडल था उनसे नहीं टूटा था. थर्ड इज द व्हाट हैपेंड विद द सिंगल स्टिक्स. व्हाट हैपेंड विद द सिंगल स्टिक. तो सिंगल स्टिक्स को क्या किया था उन्होंने? द सिंगल स्टिक्स ब्रोक वेरी क्विकली. मतलब उन्होंने जो सिंगल स्टिक था वो जल्दी से तोड़ लिया था. एक एक लकड़ी था ना, एक एक काटी है पतला, तो जल्दी से तोड़ लिया. और जो बंडल था, सेकंड क्वेश्चन में का आंसर था, वो बंडल उनसे नहीं टूटा था. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट लेसन डिड द सन लर्न? सो उनके बच्चों ने इस स्टोरी में से क्या लेसन सीखा, क्या शिक्षा ली, क्या शिक्षा मिली उनको, वो देखना है. आंसर: द सन लर्न द लेसन, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. The son learned the lesson, united we stand, divided we fall. मीन्स उन्होंने, उनके बेटों ने यहाँ से इस लेसन से ये शिक्षा ली, और हमें भी यही मिलती है शिक्षा, आपको भी लेनी है. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल मीन्स हमें एक साथ रहना है, एकता में ही बल है. अकेले अकेले रहेंगे तो कभी भी कोई भी आके हमें नुकसान पहुंचा सकता है. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. एकता में ही शक्ति है, ताकत है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस. मीन्स जहाँ जो सेंटेंसेस दिए हैं आपको, वर्ड्स दिए हैं, वो कैसे हैं? जंबल वर्ड जैसा रहते हैं ना, अनस्क्रैम्बल. हाँ, वो आगे पीछे वर्ड्स दिए हैं, वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. वो आपको उसको अच्छे से राइट सेंटेंस में मीनिंगफुल वर्ड के साथ लिखना है. फर्स्ट इज वॉरिड मैन वॉज ओल्ड द. वॉरिड मैन वॉज ओल्ड द मतलब उल्टा सा है, इसका कुछ बराबर मीनिंग नहीं बनता है. अनस्क्रैम्बल वर्ड है, इसको हम राइट सेंटेंस में लिखेंगे. आंसर इज द ओल्ड मैन वॉज वॉरिड. द ओल्ड मैन वॉज वॉरिड. ये सेंटेंस प्रॉपर हो गया. नेक्स्ट, एवरीथिंग फॉर फाइट दे वुड. एवरीथिंग फॉर फाइट दे वुड. सो आंसर इज दे वुड. स्टार्ट कहाँ से करेंगे? दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. ओके, ऐसा प्रॉपर करना है. नेक्स्ट थर्ड वन, स्टिक्स ऑफ द बंडल डिड ब्रेक नॉट. स्टिक्स ऑफ द बंडल डिड ब्रेक नॉट. सो आंसर इज द बंडल ऑफ स्टिक्स. पहले हमने ये लिखना है, द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक. ओके. फोर्थ वन, इजीली ब्रोकन
stick, a single stick. Easily broken stick, a single stick. So answer is a single stick is easily broken. समझ में आया? वो आगे पीछे दिए है सेंटेंस, उसको प्रॉपरली ऑर्डर में लिखना है हमें. A single stick is easily broken. Fifth one, stand divided for united VB. Stand divided for united VB. So answer is united we stand, divided we fall. ये मॉरल है ना स्टोरी का. United we stand, divided we fall. I repeat again. First person, worried man was old the. So answer is the old man was worried. Next, everything for fight they would fight for everything. Third one, stick of the bundle did not break. The bundle of sticks did not break. Fourth one, the easily broken stick a single is. Answer, a single stick is easily broken. Last one, stand divided we for united we. So answer is united we stand, divided we fall. Okay, अब इसको आप नोटबुक में राइट करोगे. So next person is there. Read the following sentences. Change the colored word with new words to a new sentences. Read the following sentences. Change the colored word with new word to new sentences. Okay. The old man was worried. मीन्स क्या करना है, ये सेंटेंस को हमें रीड करना है और उनमें जो कलरफुल वर्ड दिए हैं उनकी जगह पे हमें नया सेंटेंस, नया वर्ड जॉइन करके न्यू सेंटेंस बनाना है. उसमें उसका ऑपोजिट ही देना है. ओके, ऑपोजिट वर्ड्स जॉइन करके उसका नया वर्ड तैयार करना है सेंटेंस. द ओल्ड मैन वॉज वॉरिड. देखो ब्लू कलर में लिखा है ओल्ड मैन वॉज वॉरिड. ये बोल्ड किए गए हैं कलर में वर्ड, इनमें चेंजेस करना है. सो आंसर इज द यंग वुमेन वॉज हैप्पी. कहाँ चेंज किया हमने? ओल्ड मैन था, वहाँ पे ओल्ड की प्लेस पे यंग लिखा, मैन पे वुमेन राइट किया. वॉज सेम है, वॉरिड हैरान था, परेशान था, और हैप्पी मीन्स खुश हो गया. ओके, ऐसा इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. सेकंड इज ही टुक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट. यहाँ पे 3 वर्ड्स को चेंज करना है, ही, बंडल एंड ब्रेक. सो राइट, ही की प्लेस पे शी, और बंडल पे स्टिक यूज़ किया हमने, और ब्रेक मीन्स तोड़ा, और टाई मीन्स बांधना. ओके, सो शी टुक द स्टिक्स एंड ट्राई टू टाई. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन लिव विद हिज 4 sons in a village. An old man lived with his 4 sons in a village. तो यहाँ पे मैन, सन्स एंड विलेज को चेंज करना है. राइट आंसर, एन ओल्ड, वहाँ पे मैन था, यहाँ हम लोग वुमेन लिखेंगे. एन ओल्ड वुमेन लिव विद हर, हिस्सा हर गर्ल्स के साथ में हर लगता है. 4 गर्ल्स. ओके, गर्ल्स इन ए टाउन, सिटी, ऐसा कुछ भी आप डाल सकते हो. फोर्थ वन, दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड ए लेसन. ब्रदर और लेसन को चेंज करना है. दिस टाइम द सिस्टर, ब्रदर की प्लेस पे हमने सिस्टर यूज़ किया है. दिस टाइम द सिस्टर्स लर्नड ए पोएम. वहाँ पे लेसन पढ़ रहे थे, यहाँ सिस्टर क्या पढ़ रहे हैं? पोएम. फिफ्थ वन, ही एंड स्मॉल स्टिक्स को चेंज करना है. ही गेव देम स्मॉल स्टिक्स.
सो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है शी गेव देम बिग बंडल्स। ही की प्लेस पे हमने शी यूज़ किया है, स्मॉल स्टिच में बिग बंडल्स। समझ में आया आपको? ओके, ऐसा ही इसको रीड करके आप 2-3 टाइम रीड करेंगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट इज write the words that telling us something about the words in the center. Write the words that telling us something about the words at the center. यहाँ पे मैं खाली आपको बताएगी, लेकिन आपको वो वर्ड्स यहाँ पे लिखना है। ओके, सो देर आर 3 फ्लावर्स। हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड पहले भी किया था, तो इसमें भी डिस्क्राइबिंग वर्ड ही राइट करने हैं जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट सर्कल में क्या वर्ड है? मैन। क्या लिखा है? मैन, MAN, मैन। तो ये आप क्या कर सकते हो, ऐसा फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो नोटबुक में। ऊपर क्वेश्चन लिखना है, फ्लावर ड्रॉ करके उसका लीफ निकाल के उसके अंदर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। और क्या कर सकते हो आप इसके लिए, एक्टिविटी के लिए अपना क्राफ्ट पेपर का भी, चार्ट पेपर का भी ऐसा कटिंग करके सर्कल, फिर ऐसा लीफ बना सकते हो और उसके ऊपर आप ये वर्ड्स राइट कर सकते हो। सो सर्कल में लिखा, फर्स्ट सर्कल में MAN, मैन। तो फर्स्ट लीफ में क्या लिखा है? मैन यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? ओल्ड, OLD, ओल्ड, ओल्ड मैन। कंबाइंड हो गया ना वर्ड, दोनों वर्ड्स को मिला के नया वर्ड तैयार हो जाता है। और आगे ऊपर क्या लिख सकते हैं? ओल्ड मैन लिखा है। यहाँ पे पुअर मैन भी लिख सकते हैं, POOR, पुअर, पुअर मैन, POAR, पुअर मैन। फिर रिच मैन, RICH, रिच, रिच मैन। फिर और क्या लिख सकते हैं? यंग मैन, YOUNG, यंग। क्या लिख सकते हो? यंग मैन। ओल्ड मैन, यंग मैन, लेज़ी मैन भी लिख सकते हो। कुछ कुछ लेज़ी होते हैं ना, बहुत सुस्त होते हैं, LAZY, लेज़ी। ओके, ओल्ड मैन, पुअर मैन, रिच मैन, यंग मैन, लेज़ी मैन। कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट ट्री। क्या लिखा है यहाँ पे? ट्री, TREE, ट्री। और यहाँ पे क्या लिखा है? बिग, BIG, बिग। दोनों को कंबाइन करेंगे तो बिग ट्री हो गया ना, बिग ट्री। तो ऊपर हम लोग नया वर्ड डालेंगे। क्या लिखेंगे बिग ट्री पे? बताओ फटाफट। बिग ट्री, मैंगो ट्री, ऐसा ये भी राइट कर सकते हो। यहाँ पे मैंगो का स्पेलिंग है MANGO, मैंगो, मैंगो ट्री। टॉल ट्री, कंबाइन करना है, मैंगो ट्री, टॉल ट्री। और बनाना ट्री, BANANA, बनाना ट्री। और क्या कर सकते हो आप? स्मॉल ट्री। ओके, नया वर्ड, कंबाइंड वर्ड बनाना है आपको। नेक्स्ट रहेगा फ्लावर। फ्लावर यहाँ पे लिखा है सर्कल में, FLOWER, फ्लावर, पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर। और क्या लिख सकते हैं आप? प्रिटी फ्लावर, PRETTY, प्रिटी फ्लावर। रोज़ फ्लावर, लवली फ्लावर, LOVELY, लवली फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, वाइट फ्लावर, लोटस फ्लावर, शू फ्लावर। ऐसा कौन सा भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, ये तीनों फ्लावर अच्छे से निकालो, ड्राइंग भी कर सकते हो और क्राफ्ट पेपर का भी, चार्ट पेपर का भी बना के स्टिक कर सकते हो फाइल में। ओके, सो नेक्स्ट, समझ आया आपको सब अच्छे से? पहले स्टोरी को अच्छे से सुनो, समझो,
2-3 टाइम वीडियोस को, फिर ये वर्कशीट आपको लिखना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइल। ओके।